So our next chapter is biomolecules, right? So biomolecules, okay. So basically मैं आपको ओवरव्यू देता हूं सबसे पहले कि what we are going to do in this chapter, okay. So in this chapter we were start with carbohydrates, everything, type of carbohydrates, monosaccharide, disaccharides and polysaccharides, okay. And then we will study about proteins, and then we'll talk about nucleic acid, okay. So this is the content of study in this chapter, right beta? Chalo, let's start with our biomolecules, okay. तो बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि वी आर गोइंग टू डील विद द बायोमोलिक्यूल्स, एंड द फर्स्ट बायोमोलिक्यूल इज carbohydrates, okay. What are carbohydrates? Okay, so it contains two definitions, okay. इसके अंदर दो तरह की definitions हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे old definition, okay. The old definition says carbohydrates may be defined as hydrates of carbon, okay. And their journal formula is carbon X H2O Y, okay. Carbon X H2O Y, okay. So however this definition did not, okay, actually represent carbohydrates, okay. However, this definition did not represent carbohydrates, okay. Why this not represent carbohydrates, okay? Due to the following reasons, okay. Due to the following reason, okay. So number one, HCHO. एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं HCHO, जिसको मैं लिख सकता हूं कार्बन 1 H2O1, ओके. एंड एक और मॉलिक्यूल में ले रहा हूं CH3COOH, इसको मैं लिख सकता हूं, ठीक है, इसमें दो कार्बन हैं और H2O ट्वाइस, दो ही इसमें वाटर मॉलिक्यूल हैं, ओके. So this is formaldehyde and this is acetic acid, okay. So they are not so I'm writing they are not carbohydrates, okay. They are not carbohydrates, but they have journal formula, they have journal formula CXH2OY, okay, but they are not carbohydrates. Reason number 2, ये very first reason था. Reason number 2, okay,
sum of the carbohydrates, like sum of the carbohydrates, like C6H12O5, C6H12O5, okay, and C6H10O6, okay, cannot be represented by right, the journal formula CxH2O okay beta. The very important third reason is the most important reason why this definition is failed. Okay, carbon is not known to form hydrates. ओके, कार्बन हाइड्रेट्स बनाने के लिए नहीं जाना जाता, इसलिए जो हमारी ओल्ड डेफिनेशन थी वो हो गई फेल। वो क्या होगी? फेल। अगर हमारी ओल्ड डेफिनेशन फेल होगी तो हमें क्या चाहिए? एक न्यू डेफिनेशन। ओके बेटा, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू definition. Okay, so now I am writing my new definition. Okay, so basically what are the carbohydrates? The carbohydrates are defined as, okay, polyhydroxyaldehydes or polyhydroxy ketone or substances which gave them these, मतलब या तो पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड देगा या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देगा ऑन हाइड्रोलिसिस। ओके, ऑन हाइड्रोलिसिस and contain at least one chiral carbon is called carbohydrates. तो ये होगी definition. So let me write that so that you can easily understand this definition. Okay, carbohydrates are defined as, are now defined as polyhydroxy ketones, polyhydroxy aldehyde or polyhydroxy ketone, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे, या और ऐसे substances which gave these on hydrolysis. These मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देगा या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देगा। ओके, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर ऐड कर देना, दो चीजें हैं, दोनों को तोड़ देना, एक तरफ H चला जाएगा, एक तरफ OH चला जाएगा। ओके, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, एडिशन ऑफ वाटर। ओके, एंड ये या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा, एंड ये तो और चल रहा है, मतलब ये कंडीशन तो फुलफिल होंगी, एंड एक और कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एंड contain at least one chiral carbon, okay,
कायरल कार्बन क्या होता है, हम पहली बात, राइट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वी, मान लो एक कार्बन है मेरे पास, राइट, उसके ऊपर 4 ग्रुप लगे हुए हैं, ए, बी, डी एंड ई, ओके। अ कार्बन कंटेन ऑल द 4 ग्रुप डिफरेंट, ठीक है, कार्बन containing all the 4 different bonds, okay, containing all the 4 different bond, okay, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये फुल डिससिमेट्रिक हो जाएगा, ओके। जो फुल डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो इन फ्यूचर मैं आपको बता रहा हूं, तो C2 एंड मिरर प्लेन, ओके, सॉरी, मिरर प्लेन, ये दोनों सिमेट्रीज नहीं होती, ओके। C2 एंड मिरर सिमेट्री इज नॉट देयर, इस वजह से इसको हम बोलते हैं कायरल, CHIRAL, कायरल, क्योंकि ये अपनी हम सिंपल यहां लिख सकते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन मिरर इमेज, मैंने पढ़ाया था ना आपको जब मैंने कोऑर्डिनेशन कराया था, राइट। तो कायरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं अपनी मिरर इमेज के ऊपर। तो ये हो गए सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव, सारे के सारे क्या हो गए हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हो गए हैं, ओके। तो ये ध्यान में रखना है, जितनी भी शुगर्स हम लोग खाते हैं या जितनी भी शुगर हम लोग यूज करते हैं लाइफ के अंदर, वो सारी की सारी क्या होती हैं, वो सारी की सारी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और जो कार्बन कायरल होता है तो यूजली उसके ऊपर स्टार लगा होता है। तो स्टार का और कोई मतलब नहीं होता, स्टार का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि ये जो बॉन्ड है, ये जो कार्बन है वो कायरल है, ठीक है। ये C2 एंड मिरर प्लेन सिमेट्री मैंने आपको इसलिए बता दिया है, कई बार कंपटीशन में पूछ लेते हैं, ओके। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए इनके पास, क्लियर। तो मॉलिक्यूल पूरे का पूरा जो है वो डिसिमेट्रिक होना चाहिए। ऐसे जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम चायरल बोलते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। तो आप बोलोगे हमें कैसे पता लगेगा, तो सिंपल सी बात है, अगर एक कार्बन के चारों बॉन्ड डिफरेंट हैं तो समझ जाओ उसके अंदर ये सारी की सारी क्वालिटीज जो हैं वो हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डेफिनेशंस, है ना। डेफिनेशंस खत्म हो गई हैं, तो न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, या ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोलिसिस होने पे या तो हमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड दें या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन दें, इनको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, इनको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। So I am going to rub this. My next is classification of carbohydrates, okay. Next is classification of carbohydrates, okay. तो क्या क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की, तो क्लास कार्बोहाइड्रेट्स हमने डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिए हैं, ओके। सो विल स्टडी देम वन बाय वन, ओके। तो सबसे पहले डिपेंडिंग अपॉन उसके अंदर कितनी यूनिट है, ओके। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोनोसैचराइड्स, SACCHARIDES, मोनोसैचराइड्स, ओके। तो मोनोसैचराइड्स क्या होते हैं, सो दीज आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स,
these are simple carbohydrates, okay, which cannot be hydrolyzed to simple compounds, simple कंपाउंड, मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको हम फर्दर सिंपल कंपाउंड के अंदर नहीं तोड़ सकते। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं बेटा एग्जांपल क्या होगी मोनोसेचुराइड्स की, है ना, तो आपने बताना है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ओके, तो क्या होगी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। इनके स्ट्रक्चर क्या होंगे वगैरह, प्रॉपर्टीज क्या होंगी, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। ओके, फिलहाल के लिए आज आप सिंपल समझ लो कि मोनोसेचुराइड की जो एग्जांपल है वो क्या है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, और एक बात और बता दूं आपको, फ्रुक्टोज मेरे हिसाब से 50 गुना ज्यादा मीठा होता है ग्लूकोज से, तो फ्रुक्टोज इज मोर स्वीटर देन ग्लूकोज। ओके, फ्रुक्टोज इज मोर स्वीटर देन ग्लूकोज। ओके, तो ये आपने पढ़ना है। सो दूसरी टाइप जो है मेरे पास उसको बोलते हैं ओलिगोसैचराइड्स। ओलिगोसैचराइड, ओके, द वर्ड ओलिगो, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। ओके, फ्यू में अंदर 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, यहां तक हम 9 तक ले रहे हैं। ओके, यहां तक हम 2 से लेकर 19 तक ले रहे हैं। ओलिगो का मतलब होता है, अगर मैं ओलिगो वर्ड को हाईलाइट कर देता हूं, ओके, तो ओलिगो वर्ड का मतलब होता है अ फ्यू। ओके, तो अ फ्यू में हमारे पास 2 3 4 जितने मर्जी आप बीच में काउंट कर लो 9 तक। ओके, सो दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, these are carbohydrates, है ना, which upon hydrolysis, give 2 to 9, डिपेंड करता है, ओके, यूनिट्स ऑफ monosaccharides। ओके, 2 to 9 यूनिट्स ऑफ मोनोसैचराइड्स। तो इसके अंदर बहुत सारे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको डाइसैचराइड्स का, है ना, डाई का मतलब क्या हो गया, डाई, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, गलती हो गई मुझसे, डाई सैचराइड, डाई का मतलब क्या होगा 2, डाइस मींस 2, डाइसैचराइड्स मतलब 2 निकलेंगे। ओके, अगर मैं डाइसैचराइड्स की एग्जांपल करूं तो मैं बात करता हूं सुक्रोज की। ओके बेटा, सुक्रोज में जब मैं वाटर डालूंगा तो ये टूट जाएगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। ओके, मतलब 1 यूनिट ग्लूकोज होगी, 1 यूनिट फ्रुक्टोज होगी, 1 + 1 2 यूनिट होगी मेरे सुक्रोज में। ओके, तो सुक्रोज एंड अनदर एग्जांपल इज टेबल शुगर। Another example of disaccharide is table sugar। ओके, ऐसे ही अगर मैं नंबर 2 दो और ले लेता हूं, ट्राइसैचराइड्स, ट्राइसैचराइड्स, तो एग्जांपल होगा रेफिनोज, रेफिनोज, ओके, एंड सो ऑन।
सो ऑन 9 तक। ओके, ट्राई के बाद क्या क्या, टेट्रासेचुराइड्स, पेंटासेचुराइड्स, हेक्सासेचुराइड्स, okay, heptasaccharides, octasaccharides, and so on, right? So you can study them like this, है ना? So their example will be given later on, okay? But although we need not to learn such examples, आप trisaccharides तक, raffinose तक याद रख सकते हो, okay बेटा? So next is the number 3. I'm going to rub this. Hope you have noted down. सो नंबर 3 पे आ जाता है हमारे पास हमारा पॉलीसेचुराइड्स। पॉलीसेचुराइड्स, पॉली का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको हम हाइड्रोलाइज करें तो हमें एन नंबर ऑफ, यानी वेरी लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट मिल जाए। ओके, द कार्बोहाइड्रेट, द carbohydrates, okay, the carbohydrates which on hydrolysis give very large number of okay, monosaccharides, okay, which upon hydrolysis give monosaccharides, okay? So they have a general formula, okay, general formula क्या होगा? C6H10O5 और यहां पे आ गया N, ओके? तो ये भी पेपर में कई बार पूछ लेते हैं, पॉलीसेचराइड्स का जर्नल फॉर्मूला क्या होगा? ओके, तो N यूजुअली इज इक्वल टू 100 टू 1000। N की वैल्यू क्या होगी? 100 टू 1000। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल से आप बहुत ही ज्यादा वाकिफ हो, क्योंकि एग्जाम्पल मैं पहले आपको करा चुका हूं। तो एग्जाम्पल इज स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, etc. Okay, so they are the what do you call that, the examples of polysaccharides, right? So next heading, I'm not going to rub this, right, because it is a very small heading is there, sugar and non sugar, okay? शुगर्स एंड नॉन शुगर क्या होते हैं? तो सिंपल है, कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट आर कॉल्ड शुगर्स एंड दोज विच आर नॉट स्वीट इन टेस्ट आर कॉल्ड नॉन शुगर्स। कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, विच आर sweet in taste are called sugars, okay, and which are not sweet in taste are called non sugar, okay? तो ये आपको सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? तो लास्ट हमने किया था शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। तो अब हम करने वाले हैं, हमारा नया जो टॉपिक है दैट इज आवर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ओके? रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ओके? सो राइट डाउन हेडिंग, ये भी छोटा सा टॉपिक है ना? reducing and
नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ओके, ये रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? ओके, बेसिकली ओके, जो शुगर्स, ओके, शुगर्स सिंपली sugars which reduce either Fehling solution or Tollens reagent. Okay, Tollens reagent, Fehling solution and Tollens reagent, or both, okay, are called reducing sugar. ओके बेटा, तो इजी है। रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? जो फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट को, या तो फेलिंग सॉल्यूशन है या टॉलेंस रिएजेंट है, दोनों इनको रिड्यूस कर दे। ओके, उसका क्या बोलते हैं? ओके, रिड्यूसिंग शुगर। ओके, एंड those okay which do not reduce, which do not reduce, okay, any of these are called non-reducing sugar. Non-reducing शुगर। ओके, तो यहां से आपको क्लियर हो गया है कि शुगर कौन सी होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं। ठीक है जी, चलो। सो इंपॉर्टेंट नोट आपने यहां पे ध्यान में रखना है। ओके, अगर आपको कई बार कंपटीशन में आता है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिड्यूसिंग शुगर, ओके, ध्यान में रखना है all the monosaccharides, all the monosaccharides are reducing sugar. Okay, reducing sugar. Okay, और जितने भी हमारे पास पॉलीसैचराइड्स होते हैं आर नॉन रिड्यूसिंग, ओके, शुगर। दैट मीन्स आपको ऑप्शन के 4 ऑप्शन दी जाएंगी। ठीक है, अगर रिड्यूसिंग पूछा है आपको तो सबसे कम नंबर वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, और अगर नॉन रिड्यूसिंग पूछा है आपको तो सबसे ज्यादा नंबर वाला राइट ऑप्शन होगा। ओके जी, चलो। तो मैंने कहा था हम मोनोसैचराइड, डाइसैचराइड जितने भी ये हैं इनको हम दोबारा पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। ओके, तो लेट्स स्टडी देम वन बाय वन। उस टाइम पे तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल ले लिया था, राइट? सो नाउ वी आर स्टडिंग इन डिटेल द मोनोसैचराइड्स। मोनोसैचराइड्स, ओके। So these are basically what are monosaccharides? Definition में ऑलरेडी आपको बता रहा हूं, which cannot be, है ना? हाँ जी, further hydrolyzed to simple सैचराइड्स। ओके, जिसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, सबसे बेसिक यूनिट जो होती है उसको हम बोलते हैं मोनोसैचराइड्स। ओके, तो ये डेफिनेशन हम लोग को क्लियर है पहले ही, तो अब मैं इसके आगे बता रहा हूं। सो दीज आर फर्दर क्लासिफाइड एज, दीज आर फर्दर क्लासिफाइड are aldose,
and ketones. Okay, these are further classified as aldose and ketones. So aldose means aldehyde, ketones means ketone. Okay, so those monosaccharides, okay, so monosaccharides, okay, monosaccharides which contain aldehyde group, which contain aldehyde group, okay, are called aldose, are called aldose, okay, and those which contain ketone group, okay, ketone group are called ketones, are called कीटोस। तो यहां से आपको क्लियर हो जाता है कि कौन से एल्डोज हैं, कौन से एल्डिहाइड। जो एल्डोज हैं वो एल्डिहाइड होंगे, जो कीटोज हैं वो कीटोन्स होंगे। ओके, सो लेट अस टेक a simple example of aldose and ketones. Okay, so for example, I have a 6 carbon rearrangement, 3, 4, 5 and 6. Similarly, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, if एल्डिहाइड हमेशा कॉर्नर पे बनता है, एक साइड पे बनता है, ओके, इसका कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद OH आप जैसे भी लगाते हो, ये कोई ना कोई रीअरेंजमेंट तो होगा ही होगा। ओके, देन यू हैव OH हियर, H हियर, then H here and OH here. Okay, and this is my CH2OH, H2OH. Okay, similar here, but कीटोन हमेशा सेंटर में होता है दो कार्बन के बीच में, इसलिए दिस इज ऑल्सो H2OH. At the end also I have OH and this is H2. Okay, और in between कार्बन्स जो मर्जी बना लो, OH, OH. So it is like this. So simple, this is very simple, since at the one end I have aldehyde group, aldehyde group. Okay, then I will call this aldose, I will call this aldose. Similarly, in this molecule I have a keto group, this is my keto group, so I will call this as ketose. So aldose and ketose are just the notation. Okay, aldose and ketose are just the notation. Similar way, we have one more notation, that is D and L. Okay, so this is another very famous notation in monosaccharides, whether it is having D configuration or it is having L configuration. Okay, so I am clearing it. Okay, so now I am taking two aldose. Aldose means which having a aldehyde group. Okay, which is having aldehyde group, and we know that at the end of the chain I have what do you call that, alcohol, CH2OH. I am taking very simple glyceraldehyde. Okay,
तो आप इसको हेडिंग दे सकते हो, अगर आपने देना है DNL glyceraldehyde. Okay, it is basically an aldehyde. Okay, after giving this notation, now we have this carbon. Okay, now total we have how many carbon we have? We have 3 carbons. 1, 2, 3. Similarly, 1, 2, 3, and there is no problem at all. Okay, OH, I forget to write OH. Okay, now I have to write OH. It is a hydroxy, है ना? Then H. If I then this carbon become chiral because all the 4 carbons are different. तो ये ऐसे भी हो सकता था. तो दो ही पॉसिबल टाइप के रीअरेंजमेंट थे मेरे पास, या तो OH राइट में होता या OH लेफ्ट में होता. ओके, अगर आपका OH ग्रुप नीचे से सेकंड कार्बन देखना है आपने, ओके, नीचे से सेकंड कार्बन वाला अगर OH ग्रुप आपका राइट साइड पे है तो हम इसको बोलेंगे डी ग्लिसरल्डिहाइड. ओके, नीचे से सेकंड कार्बन देखते हैं, ऊपर से नहीं देखना है. नीचे से सेकंड कार्बन जब आप देखोगे और उसका OH ग्रुप राइट साइड पे है तो हम इसको बोलेंगे डी ग्लिसरल्डिहाइड. ओके, और नीचे से जब हम सेकंड नंबर कार्बन देख रहे हैं ऊपर को और उसका OH अगर लेफ्ट साइड पे है तो वी विल कॉल इट एज एल ग्लिसरल्डिहाइड. ओके, we will call it as L-glyceraldehyde. Okay, any doubt? So glyceraldehyde is a common name. It may have some different name also. Okay, so whether it is sometimes bracket में ऐसा लिखा होता है प्लस माइनस. ओके, और यहां पे ऐसा भी लिखा हो सकता था प्लस माइनस. तो ये जो DL है, कैपिटल DL है ना, ये वाला जो D और ये वाला जो L था, ये हम बता सकते हैं देख के कि हमारे OH की पोजीशन क्या है नीचे से सेकंड कार्बन के ऊपर, यानी सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर. अगर वो राइट साइड पे है तो वो D है, अगर वो लेफ्ट साइड पे है वो L है. ओके, बट ओके, बट प्लस माइनस हम नहीं बता सकते. ओके, प्लस माइनस, प्लस है या माइनस है, इसको हम देख के नहीं बता सकते बेटा. इसके लिए हमें पोलैरिमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी जरूरत पड़ती है. एक इंस्ट्रूमेंट होता है पोलैरिमीटर, ओके, जो रोटेशन कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है. ठीक है, और वो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होगा तो ही हम बता पाएंगे कि ये प्लस है या ये माइनस है. इसीलिए प्लस माइनस कुछ भी दिया हो आप उससे कोई भी मतलब हेजिटेट मत होना. ठीक है, हाँ, ठीक है जी. नाउ अगर मैं इसकी कीटोस फॉर्म लिखूं, चलो कीटोस में ऊपर भी CH2OH आ गया, बीच वाले कार्बन पे कीटोन बना दिया, नीचे वाले कार्बन पे मैंने CH2OH बना दिया. ओके, तो आप खुद देखो क्योंकि OH तो है ही नहीं है, तो D/L not decided, okay, in this molecule. हम इस मॉलिक्यूल के अंदर D और L डिसाइड ही नहीं कर पाते. कोई डाउट? ओके, लेट्स स्टडीज अबाउट राइबोज शुगर. ओके, राइबोज. अच्छा, आपने RNA और DNA पढ़ा होगा, पढ़ा है नाम, कभी सुना है? RNA and DNA. What is RNA? What is DNA? RNA stands for ribose nucleic acid. What is this? Deoxyribose nucleic acid. It simply means both are nucleic acid. The difference किसका है? शुगर का.
किसका डिफरेंस है बेटा दोनों में? सिर्फ एक शुगर का डिफरेंस है। ओके, डिफर बाय ओनली वन शुगर मॉलिक्यूल। ओके, एक बेस पेयर का चलो है वो अलग बात है। ओके, इसके अंदर ATGC कॉम्बिनेशन होते हैं, इसके अंदर AUGC कॉम्बिनेशन होते हैं। इसमें यूरेसिल आ जाता है, उसमें थायामीन होता है। ओके, सॉरी, DNA के अंदर ATGC होता है और RNA के अंदर AUGC होता है। ओके, रिवर्स लिख दिया मैंने। तो कहने का मतलब है, अगर नाम में हम देखें तो नाम में हमें पता लगता है राइबोज शुगर एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर। नाउ व्हाट इज दिस राइबोज शुगर? तो इसको हम पढ़ेंगे अब। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज। तो राइबोज क्या है? राइबोज एक शुगर है। ओके बेटा, ये एक शुगर है। तो इसमें ये मॉलिक्यूल मैंने बना दिया एल्डिहाइड। ओके, बेसिकली तो ये पेंटोज शुगर है बेटा। राइबोज इज अ पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का मतलब है वी हैव 4 and 5 कार्बन एटम। ओके, then this is O, this is H, then I have 3 to 5 carbon atom CH2OH. There is no problem at all. Okay, अब आपने एक को लिखना है डी राइबोज, चाहे आप डी माइनस बोल लो इसको, चाहे आप डी प्लस राइबोज बोलो। ओके, चाहे आप इसको एल माइनस राइबोज बोलो, चाहे आप इसको एल प्लस राइबोज बोलो। क्योंकि प्लस और माइनस जो नोटेशन है बेटा, वो हम मशीन के साथ बता सकते हैं, एज सच हम लोग नहीं बता सकते। क्लियर? बट डी है या एल है, ये क्या डिसाइड, कौन डिसाइड करेगा? हाँ जी, नीचे से सेकंड कार्बन एटम। डी का मतलब है नीचे से सेकंड कार्बन एटम का जो OH है वो कहां पे होगा? राइट साइड पे होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस OH। अगर इसको मैं लेफ्ट साइड पे लिख दूंगा, राइट, देन इट विल बिकम एल राइबोज। इट विल बिकम एल राइबोज। बाकियों का फर्क नहीं पड़ता बेटा, आप उसको जिधर मर्जी लिख दो, राइट, so it will remain as such. Okay, similar this one, sorry, this is deoxyribose na, I'm just writing DL ribose, but that's okay है ना, we don't have any problem with this. Okay, for example, बस हमें फर्क सिर्फ इसका है, नीचे से सेकेंड कार्बन एटम का। नाउ दिस इज व्हाट? राइबोज। बोथ आर राइबोज। एक डी राइबोज हो गया, एक एल राइबोज हो गया। ओके, अब मुझे क्या लिखना है? अब मुझे बनाना है डीऑक्सी राइबोज। क्योंकि वो भी राइबोज है तो जर्नल स्केलेटन जो है वो वही रहेगा, 5 कार्बन एटम वाला, 3 4 5। तो ये जो डीऑक्सी राइबोज है इसको भी मैं डी लेके चलता हूं। डी का मतलब क्या आ गया? नीचे से सेकेंड कार्बन जो है वो OH है। ओके, नाउ क्योंकि काउंटिंग शुरू ऊपर से होगी, एल्डिहाइड से होगी, क्योंकि वो सफिक्स है। तो 1 2 3 4 5। तो इसके अकॉर्डिंगली सेकेंड नंबर पे जो OH ग्रुप था दैट विल बी रिड्यूस्ड। ओके, दैट विल बी रिड्यूस्ड। जो सेकेंड नंबर पे OH ग्रुप था दैट विल बी रिड्यूस्ड and it will be written like this. So since this portion is reduced now, okay, reduced portion, so we will call it a deoxyribose. तो deoxyribose का मतलब हो गया ऊपर से सेकेंड कार्बन जो है बेटा, तो दिस इज अगेन डी, प्लस माइनस आपकी अपनी मर्जी। ओके, डीऑक्सी राइबोस। ओके, तो ये एक डीऑक्सी राइबोस क्या है?
शुगर है। कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? गुड। now we will going to write the structure of glucose and fructose. Okay beta, I'm going to rub this. Hope you have noted down. If you have not noted down, I will send you the video. Okay, so I'm going to rub that. So I'm writing here structure of glucose and fructose. This is very important. Okay. अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अच्छा ग्लूकोज की पेंटोज के बाद ग्लूकोज जो है वो हेक्सोज है बेटा। ओके, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन एटम्स। तो पहले मुझे क्या ड्रॉ करने हैं? 6 कार्बन एटम। 3 हो गए, 4 सॉरी 3 2 5 और 1 6। लास्ट में CH2OH और उसके ऊपर आ गया CHO, एक एल्डिहाइड। ओके, सिमिलर वे 3 4 5 6 OH और इसको मैंने बना दिया कीटोन। ओके, यानी एक एल्डोज हो गया, एक कीटोज हो गया मेरे पास। ठीक है, अब नीचे से मैंने सेकंड नंबर कार्बन को क्या रखा है? OH राइट साइड पे रखा है दोनों का। क्यों? क्योंकि ये D कहलाएगा। ओके, उसके बाद फर्क नहीं पड़ता कौन सी चीज किधर है, आप उसको यूजुअली रख सकते हो। ओके, जिधर आपका मन चाहे। ओके, for the time being there is no problem at all until or unless the specific R and S is not given to you at their usual positions. तो बेसिकली हमने यहां पे ध्यान रखना है, this is my D glucose, D ग्लूकोज जो आप लोग बेटा रेगुलर इनटेक करते हो, ग्लूकोज डी के नाम से भी आता है। ओके, सो ग्लूकोज डी इज वेरी मच हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। ओके, इट विल गिव यू लाइफ। अगर आप वही रूटीन लाइफ के अंदर ग्लूकोज एल कंज्यूम करोगे तो बेटा इट विल बी अ पॉइजन। ओके, तो हम ये कह सकते हैं अगर एक आइसोमर हमें लाइफ देता है तो दूसरा आइसोमर हमारे लिए पॉइजन है और वो लाइफ ले लेता है। क्लियर है? तो दैट इज द डिफरेंस इन द आइसोमर। दैट्स व्हाई सिर्फ एक आइसोमर ही हमें जरूरत होती है इसकी। ओके, सो नेक्स्ट इज द फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, इट इज अगेन एन अल्कोहल। So basically I have a ketone moiety. Okay, I have a ketone moiety. It's up to you how you want to draw this. Okay, so this is basically not glucose, this is D-fructose. It is D-fructose. Okay beta, so it is why D, because this OH is on the right side. नीचे से जो सेकंड नंबर कार्बन एटम है उसका OH जो है वो राइट साइड पे है, इसलिए ये D हो गया। फ्रुक्टोज क्यों है? क्योंकि ये एल्डिहाइड नहीं है, क्योंकि ये एल्डिहाइड नहीं है। फ्रुक्टोज क्या है? फ्रुक्टोज एक कीटोन है। और ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक एल्डिहाइड है। ओके, तो हम कह सकते हैं ग्लूकोज एल्डोज है, फ्रुक्टोज कीटोज है। ओके बेटा, so next is the mutarotation, right? So this is the one of the most important definition in the biomolecules. Okay, so उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, right? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि म्यूटा रोटेशन होता क्या है। एग्जाम्पल, ओके,
सो बेसिकली मेरे पास हमने अभी ग्लूकोज पढ़ा, राइट। ग्लूकोज के जो नीचे से सेकंड नंबर कार्बन था, यानी कि दिस इज माय कार्बन डबल बॉन्ड ओ, 1 2 3 हो गए, 4 5 6, ओके। इसका जो OH था वो राइट साइड पे था, ओके, यही था, राइट साइड पे था, ओके। विसिनिटी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये चेन होती है तो नजदीक आ जाता है, सो दिस विल अटैक हियर ऑन दिस कार्बन, ओके। ये होने के बाद हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज आती हैं बेटा। क्या पॉसिबिलिटीज आती हैं? पहली पॉसिबिलिटी ये आती है कि जो, देखो यहां से ये तो श्योर है, 2 3 4 5 एंड CH2OH, राइट। ये वाला कार्बन था, ये वाला ऑक्सीजन था, यहां पे ये वाला ऑक्सीजन था बेटा, है ना। ये एक बॉन्ड है, मैंने ये कर्व का मतलब कुछ भी नहीं है, ओके। तो ये ऐसा हो गया। अब एक बार मैं और ड्रॉ कर लेता हूं इसको, सो दैट के समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए जल्दी जल्दी में। तो 4 5 CH2OH, और ये यहां पे क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ये इधर अटैच हो जाएगा, ठीक है, सेम डिट्टो। अब क्या होगा, या तो OH मेरा लेफ्ट साइड पे आएगा, H इधर आ जाएगा, या OH मेरा राइट साइड पे आएगा, ये मेरा इधर आ जाएगा, ओके। हाँ जी। अगर तो यहां पे जब ये अटैक करेगा, ओके, तो OH comes on to the right side, तो वी विल कॉल इट अल्फा, ओके, वी विल कॉल इट अल्फा। अगर ये लेफ्ट साइड पे होगा, वी विल कॉल इट बीटा, ओके। बट नीचे से सेकंड वाला कौन सी साइड था? अगर देखा जाए नीचे से सेकंड वाला OH कौन सी साइड था? राइट साइड था। सो दिस इज अल्फा डी प्लस माइनस जो भी होगा, मतलब वो हमें मशीन बताएगी, ग्लूकोज, ओके, अल्फा प्लस माइनस ग्लूकोज। तो बेसिकली जब हम ग्लूकोज खाते हैं या ग्लूकोज देखते हैं, उसकी हमारे पास लंबी ओपन चेन नहीं होती है, तो एक्चुअल में वो हमारा इस टाइप का होता है, ओके। तो यानी, और इसमें ये क्या हो गया, बीटा, दिस इज बीटा डैश डी प्लस माइनस मुझे नहीं पता ग्लूकोज, ओके। तो कहने का मतलब है या तो अल्फा ग्लूकोज बनता है या बीटा डी ग्लूकोज बनता है, और ये रिंग ओपनिंग और क्लोजिंग एक रैपिड प्रोसेस है, यानी एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। आई बात समझ में बेटा? हाँ जी, आई बात समझ में? तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट इट इन अ बेटर वे, ताकि आपको ये समझ आ जाए, ठीक है। तो यहां पे मैं ले रहा हूं सेंटर में 2 3 4 5 6 H2OH, C डबल बॉन्ड O, H, ये एक एल्डिहाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऊपर वाले कार्बन को कैसे भी लिख सकते थे, और उसके बाद भी आपने लिखना है, बस मेरे को नीचे से सेकंड नंबर कार्बन जो मैंने अभी लिखा है, ठीक है, इसकी टेंशन है। क्यों? अगर ये लिखा जाएगा, ठीक है, तभी मेरे पास वो D बनेगा, अदरवाइज वो L बनेगा। तो चेक देखो, ये बन गया मेरे पास D प्लस माइनस जो भी होगा, मतलब वो हमें मशीन बताएगी, ग्लूकोज, ओके बेटा। तो ये क्या करता है, इसमें रैपिड इक्विलिब्रियम रहता है, ओके, ये रैपिड इक्विलिब्रियम रहता है। रैपिड इक्विलिब्रियम रहने से क्या होता है कि ये 1 2 3 4 5 6
H2OH, and again, okay, we will draw it like this. ओके एक मिनट, मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूं क्योंकि ये सुंदर नहीं बना, राइट। एंड एक ऑक्सीजन यहां पे आ जाएगी और इस तरफ से ये ऐसे आ जाएगा। ओके, तो इससे क्या हुआ कि जब इसने अटैक करा, देन माई OH, ओके, माई OH is on the right side, okay, and H is on the left side, okay, कोई डाउट? उसके अलावा हम किसी को भी नहीं छेड़ते हैं, ओके, and all other remain on its usual positions. I am not disturbing anything. Any problem? So this will form as alpha dash D plus minus ग्लूकोज। क्या बोलेंगे इसको? अल्फा डी प्लस माइनस ग्लूकोज। ओके बेटा, अब यहां पे मैं दोबारा एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं जिसके लिए अगेन मेरे को 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, डिटो सेम मेरा O इसी साइड पे आएगा जैसे पहले आया था, बट इंपॉर्टेंट है कि इस बार जो मेरा OH है वो लेफ्ट साइड पे चला गया, तो जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और अदर कार्बन एंड OH, हाइड्रोजन, whatever the things are, they will remain on their usual positions. Okay, they will remain on their usual position. So this is one of the major possibility, again second possibility. Okay, so this is what? Beta D plus minus ग्लूकोज। ओके, तो होता क्या है, यूजुअली ग्लूकोज के अंदर ये रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजिंग चलती रहती है। ओके, ये जो रिंग ओपनिंग है या रिंग क्लोजिंग जो है वो चलती रहती है। अब हमें कैसे पता लगेगा रिंग ओपनिंग है या रिंग क्लोजिंग है? ठीक है बेटा, तो उसके लिए हम लोग क्या नोट काउंट करते हैं? उसके लिए हम लोग नोट करते हैं बेटा इसकी स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन जिसको हम अल्फा डी से डिनोट करते हैं, और वो बीटा ग्लूकोज के लिए होती है 18.7 डिग्री। ओके बेटा, 18.7 डिग्री, और वो अल्फा ग्लूकोज के लिए होती है 112 डिग्री। ओके, हाँ जी, ठीक है ना। तो इतनी इसकी क्या होती है, स्पेसिफिक रोटेशन होती है। ठीक है, बट अब आप खुद बताओ, जब ये इक्विलिब्रियम वैल्यू अटेन कर लेगा, ओके, तो इक्विलिब्रियम वैल्यू अटेन कर लेगा तो आंसर कितना आएगा? बताओ 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 जल्दी, मुझे आपसे जानना है। हाँ जी, दोनों का इक्विलिब्रियम वैल्यू, तो दोनों का इक्विलिब्रियम वैल्यू कितने पे आता है? वो आ जाता है बेटा हमारा, ये यूजुअली हम शुगर देखते हैं ना, है ना, तो जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है जिसको हम खा नहीं सकते, आप लैब्स में वो शुगर देखते हो जो हम खा नहीं सकते हैं, दैट मीन्स उसका 65 डिग्री के करीब करीब स्पेसिफिक रोटेशन होता है। ओके, तो उस स्पेसिफिक रोटेशन का जो 65 है, इसका मतलब क्या हो गया? वो एक्सपायर हो गया है। क्लियर है? अगर आप अल्फा डी प्लस ग्लूकोज लोगे उसकी रोटेशन आपको 112 मिलेगी, अगर आप बीटा ग्लूकोज लोगे तो उसकी रोटेशन आपको 18.7 मिलेगी। ओके, अल्फा को भी यूज ना करो, बीटा को भी यूज ना करो। ठीक है,
बीटा पड़ा पड़ा अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा पड़ा पड़ा बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको जो एक रोटेशन दोनों की, एक साल के बाद दोनों को उठा के मेजर करोगे, दोनों की रोटेशन कितनी आएगी? 65 डिग्री सेल्सियस। ओके, हाँ जी, ठीक है जी, समझ गए हो? चलो, सो बेसिकली अब आती है बारी डेफिनेशन पे। ओके, तो डेफिनेशन जो है वो मैं साइड पे लिख रहा हूं, सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दिस। सो द फिनोमिना ऑफ change of, change in, okay, specific rotation of an optically active compound in solution with time okay, to an equilibrium value is called okay, mutarotation, and this is one of the most important definition in biomolecules. What is mutarotation? Okay, and you have to understand these things. Okay, when my alpha D plus glucose is converted into my beta D plus glucose, okay, then or beta converted to alpha, alpha converted to beta, both will attain to some equilibrium value, and this is called mutarotation. Is it clear?